Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Pat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about very fundamental concept, that is power content in AM. Means how much power is carried by an AM signal, and we derive very important formula, that is total power in AM, that is PT is equal to PC 1 plus m square by 2. Now today we will discuss about important numericals on amplitude modulation. मतलब जितने भी कंसेप्ट हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अब तक डिस्कस किए उस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स लेट्स क्विकली रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो एज वी नो, in amplitude modulation the carrier signal is given as EC of t. Let me denote it by EC, so it will be C subscript C means carrier. EC of t is equal to capital EC cos omega ct, where EC is nothing but it is the peak amplitude of carrier signal. This is the peak amplitude of carrier signal, basically peak amplitude or maximum amplitude of carrier signal, amplitude of carrier signal. Okay, omega c, that is the angular carrier frequency. Okay, and omega c is nothing but it is a 2 pi fc in general. Similarly, modulating signal or information signal is given as mathematically em of t is equal to Em cos omega mt, where Em is nothing but it is the peak amplitude of modulating signal. This is basically peak amplitude of modulating or information signal. Modulating, basically it is the modulating signal, peak amplitude of the modulating signal, and omega m is nothing but it is the angular frequency of modulating signal, and omega m is equal to, basically omega m is equal to 2 pi fm, where fm is nothing but it is the modulating signal frequency. Now we also know that the ratio of peak amplitude of modulating signal to peak amplitude of carrier signal, that nothing but it is the modulation index m. Okay, so modulation index m is equal to Em divided by EC, and if we multiply it by 100, then we have modulation index in terms of percentage. Okay, this thing we know. The maximum amplitude of modulated signal, so Emax denotes maximum एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल. जो एएम सिग्नल मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो कैरियर सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड का सम. सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव इज नथिंग बट ईसी प्लस ईएम. सिमिलरली मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज नथिंग बट ईसी माइनस ईएम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है. एंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ maximum amplitude of modulated signal and minimum amplitude of modulated signal is given as m is equal to Emax minus Emin divided by Emax plus Emin. Emax minus Emin divided by Emax plus Emin. ये भी बहुत ही important relation और formula बोल सकते हैं. Now the bandwidth requirement for amplitude modulated wave is nothing but bandwidth is equal to twice FM. Okay, ये भी बहुत important relation है. Bandwidth of AM is equal to twice FM, where FM is nothing but it is the modulating maximum modulating signal frequency. जो हमारा modulating signal है, information signal है, उसमें जो maximum frequency होती है वो maximum frequency that is FM. Now PC stands for power of the carrier signal. So power of the carrier signal is nothing but it is the EC square divided by 2R. EC square divided by 2R, where R is the resistance. Okay, and if we take the R is equal to 1, then carrier power is equal to EC square divided by
2. Now total power of this AM signal is nothing but it is the PT is equal to PC 1 plus M square divided by 2. Okay, so this is the total power. Okay, carrier power is this square divided by 2R, and the power content of lower side band and upper side band is given by the formula M square by 4 PC, and the lower side band and upper side band has the same amplitude, means they carry the same power. Okay, so these are the some important relation in regards of amplitude modulation, and we will use this formula to solve the numericals of amplitude modulation. So let's start discussing about the numericals of amplitude modulation. Okay, so first numerical, that is very simple. So let me read the question first. So for an amplitude modulation, the amplitude of the modulating signal is 0.5 volt. Modulating signal का जो amplitude है, that is EM is equal to 0.5 volt, very important. Okay, and carrier amplitude is 1 volt, that is EC, E subscript C, that is the 1 volt. Then find the modulation index. So basically हमें पता है कि modulation index क्या होता है. So modulation index is nothing but it is the ratio of peak amplitude of modulating signal to peak amplitude of carrier signal. That is the EM divided by EC. EM की वैल्यू क्या है 0.5, EC की वैल्यू क्या है 1. ओके, तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना मिलेगा 0.5. ओके, समझ में आ गया? यस और नो? ओके, सो दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स M is equal to 0.5. Now next, when modulation percentage is 75%, question number 2, when modulation percentage is 75% and AM transmitter radiates 10 kilowatt power, how much of this is carrier power? मतलब यहाँ पे modulation index हमारे पास है, modulation index कितना है 75% है. So that is the 75% modulation index. अब ये परसेंटेज में तो उसको नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 0.75. ओके, M इज इक्वल टू 0.75. ओके, एंड वो AM का पावर कितना है टोटल 10 किलोवाट, मतलब PT यहाँ पे है, टोटल पावर हमारे पास है. सो टोटल पावर इज इक्वल टू 10 किलोवाट. 10 किलोवाट टोटल पावर है. ओके, तो उसमें से कैरियर पावर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. तो बच्चों वेरी सिंपल है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टोटल पावर ऑफ AM का, दैट इज PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो वो फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमें PC फाइंड करना है, तो PC को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PT, दैट इज P टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस M स्क्वायर बाय 2. मतलब यहाँ पे PC को सब्जेक्ट करा है, बना दिया हमने. अब PT की वैल्यू पता है हमें 10 किलोवाट, सो उसको वाट में कन्वर्ट करो, 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस M. M इज नथिंग बट इट इज 0.75. ओके, तो 75 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कैरियर पावर मिलेगा PC इज इक्वल टू 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वाट. तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, a modulating signal M of t is equal to 10 cos 2 pi multiply by 10⁻³ ये 10⁻³ है, it's not 103, it is 10⁻³ is amplitude modulated with carrier signal C of t is equal to 50 cos 2 pi 10⁻⁵t, ये 10⁻⁵t है, not 105, it is a 10⁻⁵t. Find the modulation index, the carrier power and power required for ट्रांसमिटिंग AM वेव. मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना है, मतलब M फाइंड करना है. M को मॉड्यूलेशन इंडेक्स को समटाइम्स म्यू से भी डिनोट करता है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय म्यू. ओके, कैरियर पावर फाइंड करना है, दैट इज PC फाइंड करना है, एंड पावर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट AM, दैट इज PT. तो ये 3 क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे फिर से कौन कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है, modulation index that is small m or mu, carrier power that is PC,
and power required for transmitting AM, that is PT. अब क्या क्या हमारे पास है, यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है. तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा है, m of t is equal to 10 cos 2 pi multiplied by 10⁻³ ओके. और कैरियर सिग्नल कौन सा है, c of t is equal to 50 cos 2 pi 10⁻⁵t. अब बच्चों एक चीज सिंपल है कि m और म्यू का फॉर्मूला क्या है, दैट इज m इज इक्वल टू em डिवाइडेड बाय EC, em डिवाइडेड बाय EC. और समटाइम्स em को am भी डिनोट करते हैं, am से भी डिनोट करते हैं, am डिवाइडेड बाय AC. व्हाट इज em, दैट इज अ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. व्हाट इज EC, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. am से हमने डिनोट किया है em को, EC से डिनोट किया है AC को. तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, am मिल जाएगा, दैट इज am इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, am इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10 वोल्ट. एट यहां से AC कितना मिलेगा, दैट इज पीक एम्पलीट्यूड कैरियर, दैट इज AC इज इक्वल टू 50 वोल्ट. ओके, AM और AC दोनों मिल गया. AM इज नथिंग बट इट इज अ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, AC इज नथिंग बट पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. तो म्यू और m क्या मिल जाएगा, म्यू इज नथिंग बट इट इज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल m. तो ये कितना हो जाएगा, AM डिवाइडेड बाय AC. AM की वैल्यू कितनी है 10, AC की वैल्यू कितनी है 50, तो ये हो जाएगा 0.2. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें कितना मिला 0.2. और PC फाइंड करना है, दैट इज पीक क्या एम्पलीट्यूड ऑफ द पावर कंटेंट ऑफ द कैरियर सिग्नल. तो PC का फॉर्मूला क्या है बच्चों, PC इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R. ओके, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R. और हम AC को EC भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा EC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R. यहाँ पे नोटेशन सिर्फ अलग है, बाकी सब कुछ सेम है. EC की जगह पे AC है. अब EC मतलब पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, वो हमें पता है 50 है, तो 50 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. फॉर सिंप्लिसिटी टेक R इज इक्वल टू 1, मतलब हम R इज इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं यहाँ पे. तो अगर मैं R इज इक्वल टू 1 कंसीडर करूंगा तो मुझे कैरियर पावर क्या मिलेगा, 1250 वाट. 1250 वाट. तो कैरियर पावर भी मिल गया, m भी मिल गया. अब PT फाइंड करना है, पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग m. ओके, टोटल पावर. तो टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके, m इज नथिंग बट इट इज म्यू बेसिकली. ओके, दोनों सेम है, सिर्फ नोटेशन अलग है. यहाँ पे म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है. तो PC की वैल्यू कितनी मिली है 1250. तो PC की वैल्यू यहाँ पे रख दो 1250. m की वैल्यू कितनी मिली है 0.2, सो 0.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल पावर मिलेगा 1275 वाट. 1275 वाट. सो PT इज इक्वल टू 1275 वाट. टोटल पावर इज इक्वल टू 1275 वाट. एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि आउट ऑफ 1275 वाट कैरियर पावर कितना है, 1250 वाट कैरियर पावर है. ओके, मतलब रिमेनिंग 25 वाट इज साइड बेंड पावर. सिंपल कैलकुलेशन है. 1275 वाट AM का टोटल पावर है, उसमें से 1250 वाट कैरियर पावर है. तो बाकी का जो 25 वाट बचा वो किसका पावर हो जाएगा, साइड बेंड पावर. अपर साइड बेंड एंड लोअर साइड बेंड पावर. टोटल पावर साइड बेंड पावर. ओके, तो दोनों साइड बेंड का टोटल पावर है 25. तो सिंगल साइड बेंड का पावर कितना हो जाएगा 12.5 वाट. ओके, दो साइड बेंड का पावर 25 है, तो एक साइड बेंड का कितना होगा 12.5 वाट. सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आ गया. ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड वेव or amplitude modulated wave, basically this is the AM wave. Amplitude modulated wave is given by S of t is equal to 21 plus 0.5 cos in the bracket 2 pi multiplied by 10⁻³ cos 4 pi multiplied by 10⁵t. Find carrier power, total side band power
एंड बैंडविड्थ ऑफ एएम। यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, कैरियर पावर फाइंड करना है, दैट इज पीसी फाइंड करना है, टोटल साइड बैंड पावर मतलब टोटल पीएसबी फाइंड करना है, साइड बैंड पावर मतलब दोनों का पावर आ गया है, पी यूएसबी प्लस पी एलएसबी, बेसिकली पीएसबी इज इक्वल टू अपर साइड बैंड पावर पी यूएसबी प्लस पी एलएसबी। ये सब आपको पता होगा, आई होप सो, कि अपर साइड बैंड पावर क्या होता है, लोअर साइड बैंड पावर क्या होता है, और दोनों का सम करेंगे टोटल साइड बैंड पावर मिलेगा। एंड बैंडविड्थ ऑफ एएम, एएम की बैंडविड्थ दैट इज द BW। तो ये 3 क्वांटिटी फाइंड करनी है मुझे, ओके। तो इजी है, ये मेरा एएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। तो उसको मैं ये इक्वेशन से कुछ पैरामीटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो अगर मैं ये इक्वेशन को हमारे एएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, तो एएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, याद करो, एस ऑफ टी इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एएम, देयर इज एस ऑफ टी इज इक्वल टू ईसी। बेसिकली हम ईसी से डिनोट किया था हमने, ईसी और एसी दोनों सेम है, देयर इज कैरियर पीक कैरियर एम्पलीट्यूड ईसी 1 प्लस एम, देयर इज म्यू cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। तो अगर मैं ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं, तो कुछ पैरामीटर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर दैट इज AC इज इक्वल टू 20 वोल्ट, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर दैट इज AC इज इक्वल टू 20 वोल्ट। फिर FM मिल सकता है इसके साथ, सॉरी म्यू पहले ले लेते हैं, तो म्यू की वैल्यू क्या है कंपेयर करो तो 0.8 हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0.8, ओके। FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई FMT, तो FM इज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज, तो FM इज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज और बेसिकली 1 किलो हर्ट्ज। एंड FC इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵T, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ हर्ट्ज FC हो जाएगा। अगर इसको कंपेयर करें तो इसके साथ, तो FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा बेसिकली 200 किलो हर्ट्ज। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने ये इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट किए, ओके, उसकी वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट की। अब सिंपल है, ये सब पैरामीटर हमारे पास है, तो ये सब क्वांटिटी फाइंड करना इजी है। तो पीसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पीसी इज नथिंग बट इट इज बेसिकली AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, यस और नो, पीसी इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, ओके। AC स्क्वायर और EC बोले तो भी वो ही है, तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। AC की वैल्यू हमें पता है 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और R की वैल्यू हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के मतलब 1 एज्यूम करते हैं, लेट्स से R इज इक्वल टू 1 ओम, एज्यूम करते हैं कि जो एंटेन है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैरियर पावर हमें मिलेगा 200 वॉट। कैरियर पावर कितना मिला 200 वॉट। अब मुझे साइड बैंड पावर फाइंड करना है, तो साइड बैंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, MP डिवाइडेड बाय 2, M स्क्वायर PC डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा M स्क्वायर PC डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो PC की वैल्यू हमें पता है 200 मल्टीप्लाई बाय म्यू की दैट इज M 0.8 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 64 वोल्ट। तो वेरी इजी, ओके, ये बहुत इजी है, ओके। दैट इज M स्क्वायर बाय 2 PC बेसिकली, दैट इज द टोटल साइड बैंड पावर। सिंगल साइड बैंड पावर कितना होता है बच्चों, सिंगल साइड बैंड पावर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज P USB इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज M स्क्वायर बाय 4 PC होता है, M स्क्वायर बाय 4 PC। यहाँ पे नोटेशन पे मतलब कंफ्यूज मत हो, M की जगह पे यहाँ पे म्यू है, बाकी दोनों सेम है, दैट इज ओके। दैट म्यू और M दैट इज नथिंग बट इट इज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली। सो P USB इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 PC इज इक्वल टू P LSB, ओके। और दोनों का हम सम करें तो मुझे क्या मिलेगा P SB दैट इज टोटल साइड बैंड पावर, तो म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 PC प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 PC क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 PC, तो हमें ये 64 वोल्ट मिल जाएगा। तो दो क्वांटिटी हमें मिल गई, PC और PSB मिल गए। अब बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला सिंपल है, ट्वाइस FM मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। FM की वैल्यू क्या है 1 किलो हर्ट्ज, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो दैट इज द 2 किलो हर्ट्ज। सो बैंडविड्थ ऑफ FM इज 2 किलो हर्ट्ज। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, सो बी केयरफुल, ओके। और एक बार अच्छे से समझ लो तो आपको ये मतलब इजी मार्क्स मिल जाएंगे, ओके, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
द टोटल पावर कंटेंट ऑफ AM सिग्नल इज 1000 watt, मतलब PT इज इक्वल टू 1000 watt. PT is equal to 1000 watt. Okay, determine the power being transmitted at carrier frequency and each side bands when modulation percentage is 100 watt. मॉड्यूलेशन परसेंटेज का मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे कितना है बच्चों? 100%. तो उसके नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करो परसेंटेज को, तो ये क्या हो जाएगा 1. मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है 1. M इज इक्वल टू 1. ओके, समझ में आ रहा है? सो M की वैल्यू कितनी मिली 1. ये परसेंटेज में 100%, मतलब M इज इक्वल टू 1. उसको 100 से डिवाइड करो तो M इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो हमें फाइंड क्या करना है? पावर बीइंग ट्रांसमिटेड एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब PC फाइंड करना है. एंड पावर ऑफ ईच साइड बैंड, दैट इज PUSB एंड PLSB. तो मुझे कैरियर पावर, अपर साइड बैंड पावर एंड लोअर साइड बैंड फाइंड करना है. लोअर साइड बैंड पावर तो PC तो इजीली मिल जाएगा. डायरेक्ट फॉर्मूला है PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस M² डिवाइडेड बाय 2. ये AM के टोटल पावर का फॉर्मूला है. मुझे PC फाइंड करना है फर्स्ट, तो PC को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा? PC इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाय 1 प्लस M² डिवाइडेड बाय 2. PT की वैल्यू पता है 1000 वाट, M की वैल्यू भी पता है, तो ये कितना हो जाएगा? M इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस M की जगह पे 1 लिखो, तो 1² डिवाइड बाय 2. तो PC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.67 वाट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. PC की वैल्यू मिल गई, दैट इज 666.67 वाट. तो ये कैरियर पावर मिल गया. अब अपर साइड बैंड पावर एंड लोअर साइड बैंड पावर फाइंड करना है, तो ये भी इजी है. तो PUSB और PLSB दोनों का पावर सेम होता है. अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, मतलब AM में दोनों साइड बैंड में इक्वल पावर कैरी करता है वो. तो अगर मैंने एक का फाइंड कर दिया तो दूसरे का भी मिल जाएगा. तो PUSB इज इक्वल टू PLSB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M² डिवाइडेड बाय 4PC. फॉर्मूला क्या है? साइड बैंड पावर का फॉर्मूला क्या है? लोअर साइड बैंड पावर और अपर साइड बैंड पावर के पावर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज PUSB इज इक्वल टू PLSB इज इक्वल टू M² डिवाइडेड बाय 4PC. M की वैल्यू पता है, दैट इज 1, और PC की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 666.67 वाट. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड का पावर मिलेगा 166.67 वाट. ओके, तो ये अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड का पावर है. समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं. ओके, और ये वेरी इजी रोकड़े मार्क्स है. मतलब ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला अगर आपको आते हैं और एक बार आपने उसका स्टडी किया है तो आप इजीली इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. ओके, so let's stop here. Okay, we will discuss other aspect of this amplitude modulation in our next video lecture. Thank you very much.